ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰਾਲਾ 2020 ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੱਸ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ 11ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਜੀ। ਆਪ ਰੂਪ ਅਮੀਕ ਅਨਉਸਤਤ ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਵਧੂਤ गर्भ गंजन सर्ब भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनातम एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र ना जानही जह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत पाखत नित कोट सिमरत पुराण शास्त्र नावई वो चित। आप रूप अमीक अनुस्तत। आप रूप आप भाव अपने आप तो रूप ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੂਪ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਰੂਪ। ਅਮੀਕ ਅਨੁਸਤਤ ਆਪ ਰੂਪ ਯਾਨੀ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਅਮੀਕ ਅਨੁਸਤਤ ਅਮੀਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਮੀਕ ਹੈ, ਰਫੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਮੀਕ ਡੂੰਘਿਆਈ ਵਾਲਾ। ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਹਨ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਅਮੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ, ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲਾ। ਅਨਉਸਤਤ ਉਸਤਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਡਿਆਈ। ਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਉਸਤਤ ਜਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਕਰ ਲੇਗਾ, 4 ਕਰ ਲੇਗਾ, 100 ਕਰ ਲੇਗਾ, 1000 ਕਰ ਲੇਗਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ। ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਵਧੂਤ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਆਪ, ਪੁਰਖ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅਵਧੂਤ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੇਪ ਛੇਪ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਵਧੂਤ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ। ਏਕ ਪੁਰਖ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਵਧੂਤ ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ। ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਗਰਭ ਅਹੰਕਾਰ ਗੰਜਨ ਅਹੰਕਾਰ ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਰਬ ਭੰਜਨ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਸਰਬ ਭੰਜਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਆਦ ਰੂਪ ਅਸੂਤ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੂਤ ਅਸੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਜਨਮ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੂਤ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਅਸੂਤ ਹੈ। ਅੰਗਹੀਨ ਅਪੰਗ ਅਨਾਤਮ ਅੰਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਗਹੀਨ ਹੈ। ਅੰਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਗਹੀਨ ਭਾਵ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
अंगहीन, शरीर तो रहता है। अपंग, अपंग जिन्हों कोई भंग नहीं सकता, जिन्हों कोई भंग नहीं सकता कह सकते हैं, जिਵੇਂ तोड़ नहीं सकता कोई। अपंग। अनात्म, अनात्म हो गया अन जमा आत्म, जिवें असी तुसी एक जीव आत्मा वां, इदां ही दुनिया विच है ना ਵੱਖੋ ਵੱਖ जीव आत्मा, यानी कि हर एक की अपनी एक हस्ती, अपनी एक पहचान है। पर परमात्मा का अजिहा कोई एक अलग तो कोई वो कह सकते हैं कोई जीव आत्मा नहीं है। हर एक विच ओदी जोत है, पर वो अलग तो कह सकते हैं कोई एक नहीं है। वो हर एक विच मुकम्मल तौर पर विराजमान है, पर यह नहीं कह सकते कि हाँ बई वो एक जिवें साडे तुहाडे वर्गा कोई एक शरीर है। नहीं, अनात्म है, कोई ओदी अलग तो जीवात्मा नहीं है। एक पुरख अपार, इको एक पुरख है ते वो अपार है। अपार कौन हुंदा है? जिहदा पार नहीं पाया जा सकता। इको एक है, पुरख है, हर एक विच व्यापक है ते वो अपार है, जिहदा असी पार नहीं पा सकते। सर्व लायक, हर एक दे लायक है, भाव हर एक दे जोगा है, हर एक दे लई समर्थ है, लायक समर्थ है। सर्व कायक, ते सब नूं मुकाउण वाला भी है। सर्व को प्रतपाल, ते सब दी प्रतपालना करने वाला भी हो आप अकाल। सर्व गंता, सर्व हंता, सर्व गंता भाव सर्व यानी कि हर एक जगह, ते गंता यानी कि पहुंच, वो हर जगह ओदी कह सकते हैं कि ओदी पहुंच है। सर्व गंता, हर एक जगह की ओदी पहुंच है, हर एक विच ओदी पहुंच है। सर्व हंता, ते हर किसे नूं मुकाउण वाला भी हो आप अकाल पुरख है। सर्व ते अनभेख, ते अनभेख दा इत्थे अर्थ है निराला, ते सब तो और निराला है। किसे दे नाल भी कह सकते हैं कि वो मिलदा जुलदा नहीं है, वो सब तो ही वखरा है, उसकी हस्ती जिहड़ी सब तो वखरी है, वो सब तो निराला है, सब तो वाक्य है, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਬ शास्त्र ना जानही, जह रूप रंग अर रेख। सर्ब जिन्ने भी ने सारे ही धार्मिक ग्रंथ, शास्त्र धार्मिक ग्रंथ ना जान ही नहीं जानते, जिह भाव जिस दे रूप नूं, रंग नूं, अर यानी कि अते और रेख भाव किसी निशानी नूं, यानी कि जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ ਜਿਹੜੇ मौजूद हैं या हो सकता है आने वाले समय में होर बनन ते ਜਿਹੜੇ बन चुके हैं, ते कित्थे भी कह सकते हैं कि उन्हां धार्मिक ग्रंथां तक वो सीमित नहीं है कि हाँ बई अगर कोई भी एक ग्रंथ असी पढ़ लवांगे तो असी दावा कर दईए कि हाँ जी सानू सब कुछ पता लग गया परमात्मा के बारे। नहीं, तो जिन्हां को जिन्ने समझ हैगी सी ते जिन्हां को उस धार्मिक ग्रंथ की कह सकते हैं लिखारियां दी, लिखण वालियां दी कह सकते हैं कि दायरा सी, उत्थे तक उन्होंने दसन की कोशिश की, पर वो कह सकते हैं कि उत्थे भी फुल स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जो परमात्मा है उसका कोई एक सीमित दायरा नहीं। अगर किसी भी एक धार्मिक ग्रंथ में अगर वो मुकम्मल तौर पर हर एक गल दस दी जाए तो फिर तो कह सकते हैं कि परमात्मा जिहड़ा है वो सीमित हो गया, उसका दायरा सीमित हो गया। जिवें वो साडी सोच विच नहीं है, उवें वो किसी भी एक धार्मिक ग्रंथ विच कह सकते हैं कि ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ नहीं किया जा सकता। सर्व शास्त्र ना जान ही, हर एक सारे धार्मिक ग्रंथ ਜਿਹੜੇ नहीं जानते, जह रूप रंग अर रेख, पूर्ण तौर ते जिस दे रूप रंग ਅਤੇ निशानियां ਨੂੰ पूर्ण तौर ते नहीं जानते। परम, क्योंकि वो बहुत सब तो उच्चा है। परम वेद पुराण जाग्य है, ते वेद पुराण जाग्य है भाव वेद ਅਤੇ पुराण जिस दे नेत भाखत नित। नेत भाव ने जमा एत तो ये बने ते ना जमा एत तो, सॉरी ना जमा एत तो ना एत की भाव ए भी नहीं, ऐसा जिहड़ा वर्ड मीनिंग बनता है ना एत मतलब एंडलैस, जिवें कोई कोशिश करता है उसका बयान करन दी ते उन्होंने पता लगता है कि हाँ शायद ए दा मीनिंग है, फिर पता लगता है ते एंडलैस है ना एत, यानी कि ए भी नहीं। जिद्दां ही कुछ पता लगता है नवा तो फिर पता लगता है नहीं ये भी नहीं, तो अगे भी कुछ है, फिर कुछ नवा खोज होती फिर पता लगता है ये भी नहीं, यानी कि
परम यानी कि इन्ना उच्चा कि वेद पुराण जाके भाव जिस दे वेद पुराण भी ਜਿਹੜੇ ਨੇ नेत भाखत भाव ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਨਿਤ ਭਾਵ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਐਂਡਲੈਸ ਭਾਖਤ यानी कि ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਟ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰ यानी कि सिमरतियां विच पुराणा विच शास्त्रां विच करोड़ा ही है ना, कोट भाव करोड़ा ही ना आवई वह चित्त, ना आवई नहीं आउंदा वह चित्त भाव उन्हां दे समझ विच, ना आवई वह यानी कि उन्हां दे चित्त भाव समझ, भावें कोई सिमरतियां होण, पुराण होण, शास्त्र होण, करोड़ा ही होण, भाव यानी कि बेअंत ही होण, भाव अर्थ निकलेगा। कोट का अर्थ इत्थे करोड़ा हैं, पर अगर असीं उहदा भाव अर्थ लवांगे तो बेअंत बन जाएगा। भावें बेअंत ही कोई सिमरतियां पढ़ ले, पुराण पढ़ ले, शास्त्र पढ़ ले ते कह दे कि हाँ जी मैनूं हुण परमात्मा दे बारे हर एक गल पता लगी, पर नहीं ना आवई वो चित्त, पर उस वो तां भी समझ विच उहनां दे कह सकदे हां दायरे विच नहीं आ सकदा, क्योंकि परमात्मा जिहड़ा है वो कहन तो परे ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਮੀਕ ਅਨੁਸਤਤ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ, ਅਮੀਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨੁਸਤਤ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵਈ ਵਹੁ ਚਿਤ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੁਆਲ ਛੰਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੱਧਭਾਗ ਛੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। इस तरीके आप सब ने जेड़े भी मेरे वीर भैन वीडियो सुन लेंगे हाथ जोड़ बेनती जिवें कि आप जिन्होंने हमेशा की जाती है कि सुनने के बाद अगे शेयर जरूर करा करो, ताकि आपका भी जोड़ा हिस्सा जोड़ा है वो इस उपराले में पै सके। तो आप जी अगर कोई भी सवाल होए आप जी जरूर कमेंट बॉक्स से जिवें कि लिखते हो लिखिया करो। सब का बहुत बहुत धन्यवाद, दिलों धन्यवाद। गज के फतेह बुलाना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की